जी, let's start hexadecimal number system. We have already seen denary numbers, decimal representation, and binary representation. So base 10 and base 2 we have already done. So today we'll do base 16 number. So hexadecimal is actually base 16. That means here we have digits or characters that we can use to represent our data and code, like 0 से 9 तक and A से F तक. So altogether these are 16 characters that we are going to represent our data. The purpose of hexadecimal numbers is to simplify our binary codes, because you can understand writing zeros and ones and ones and zeros and zeros and ones and zeros and ones, so many zeros and ones. There are many, this is difficult to memorize what it is for human. And whenever we code, only 1 0 is flipped to 1 and 1 is flipped to 0, can completely make the correct code incorrect. So hexadecimal number is for humans to use. The programmers use it for coding colors, we also use it for memory indexing, memory addresses, and very commonly it is used in assembly language, these codes. And the basic purpose, basic idea is that for programmers it is comparatively less troublesome. It is comparatively easier in comparison to binary code for humans to memorize the code, because it makes the code shorter. So, and because this is a little confusing to type for humans also, तो इसलिए हम उसको हेक्साडेसिमल कोडिंग को यूज कर सकते हैं. एग्जाम में आपको आ सकता है कि लाइक दिस इज एन 8-bit register, convert this into hexadecimal, or this is a hexadecimal base 16 number, convert this into binary or denary number. So as I earlier drawn, that in exams we actually require students to learn denary to binary, binary to denary, and denary to hexa, and hexa to binary. So this conversion is normally we expect in exams to come in. सर एक चीज क्या नहीं थी. एक मिनट बेटा, एक मिनट. जी बेटा, क्या कह रहे थे आप? सर वो जो बुक है ना, जो पर्पल कलर की बुक है, जिसपे वीआर करना होता है बंदे ने, जिसके लोगो पे. जी जी, उसका मुझे पीडीएफ मिल. let's start the conversion of hexadecimal numbers, denary, binary, and all this stuff. Now, it is same as other systems, like 16 base 0 is 1, 16 base 1 is 16, 16 base 2 is 256, and it goes on. I think 16 base 3 is somewhere, I think 4096, and then it goes on. तो जिस तरह से हमारा decimal number system था 1, 10, 100, and it goes on, like in the same way
बाइनरी था 1 2 4 8 16 and so on. So in the same way, this is hexadecimal numbers, and this is a very important part of our data representation topic, because हमें एग्जाम में इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. काफ़ी क्वेश्चंस इससे मिलते जुलते हमें डेफिनेटली एग्जाम में आते हैं. अब 16 बेस का मतलब है कि 16 कॉम्बिनेशंस तो हमें चाहिए ही चाहिए. बेस 16 का मतलब है कि हमें कम से कम 16 कॉम्बिनेशंस चाहिए. तो इसका मतलब है कि हमें 4 बिट रजिस्टर चाहिए होगा. 4 बिट रजिस्टर चाहिए होगा ताकि 16 कॉम्बिनेशंस हम बना सकें. और अगर हम यहाँ पे आके देखें, ऊपर मैंने अभी लिखा था हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A से F. तो इसका मतलब है कि हेक्साडेसिमल नंबर 4 बिट रजिस्टर में ही रिप्रेजेंट हो सकता है, इससे कम में रिप्रेजेंट नहीं हो सकता. So let me make a chart where I could put these hexadecimal numbers and daily numbers, क्योंकि ये हमें याद रखना है. तो इससे पहले कि मैं इसको मेरे मेरे बेटे की भी क्लास हो रही है और मैं भी, कैसे चलेगा मैडम, ये तो करना पड़ेगा. अच्छा जी, मैं इधर बनाता हूँ, आप वो उधर बनाएं. 8 बिट रजिस्टर का टेबल आप लोगों ने बनाना है अगर आपको याद हो तो, और आपने उसमें किस तरह से बनाना है मैं आपको ये बता रहा हूँ. एक कॉलम आपका होगा यहाँ पर बाइनरी नंबर्स का, और सॉरी एक कॉलम यहाँ बना लें डेनरी नंबर का, एक कॉलम यहाँ बना लें one column will be created for hexadecimal numbers, hexa, and one I will make for binary. And we'll make 16 columns over here, oh sorry, rows. 1 2 3, पता नहीं बनती है कि नहीं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and 16. Okay, and in this we are going to have 4 columns. 1 2 3 and 4. Okay, so what we want to represent 16 numbers. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. You see 16 things that we can represent. In hexa, what we can show 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and for 10 we have A B C D E and F. Now 0 denary and 0 hexa is equals to 0 0 0 0. And I remember मैंने आपको बताया हुआ है कि ये चार्ट कैसे बनना है, with the power of 1 2 4 and 8. So keep on 0 1 0 in this column, 0 1 0 1 0 1 0 1. In these columns you put 2 zeros 2 ones, 4 zeros and 4 ones, and in this 8 zeros and 8 ones. So that is how you are going to represent every denary and hexadecimal number into binary number. I'm doing it in other way now so that हमें वो भी याद हो, क्योंकि ये पूरा चार्ट हमें याद रखना है, जहन में प्रैक्टिस करेंगे तो याद होगा. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 is equals to 3. You can understand 2 plus 1 is equals to 3.
0100 is representing 4, 010 is representing 5, 0110 is representing 6, 4 plus 2 is 6, and then we have 0111, this is equals to 7, and then we have 8, 1000, this is equal to 8 because 8 fourth bit is on, labeled as 8. 10001 is 9, 1010 is 10, 1011 is 11, 1100 is 12, which is C in hexa. 1101 is 13, 1101, sorry, 1110 is 14, and 1111 is 15. So hexa A is equals to binary 10, and this is your binary representation of decimal. Now these 4-bit codes are binary representation of hexadecimal numbers and 16 denary numbers, 0 से लेकर 15 तक और 0 से लेकर F तक. ये हमें याद रखने हैं और इससे हम कन्वर्जन करेंगे. So अगर हमें 8 याद है, ये हम याद कर लें 8, तो फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, तो ये इतने मुश्किल नहीं होंगे याद करना. So now how to do it? Now if in examiner says, ये थोड़ा यहाँ तक मैं आपको शो करता हूँ टेबल ताकि आपको याद रहे. Now examiner कहता है कि एक डेसिमल नंबर है 127 base 2. Convert this into hexa. मैं स्टूडेंट से कहता हूँ there are many ways. आप डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं, 127 डिवाइड बाय 16 वाला मेथड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ये मेथड आपका टाइम ज़्यादा लेगा और आपकी कैलकुलेशन में गलती हो सकती है. सो मैं स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप ऐसा करें, जो हमारा जो मैंने आपको वे बताया हुआ है, आप उस वे में प्रैक्टिस करने की कोशिश करें. 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ज़्यादा हो गया. Let me erase it. 1 2 4 8 16 32 64 और -128. सो इसको अगर हम 126 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आपको शायद याद होगा कि मैंने बताया था कि ऑल सॉलिड वंस पहले को छोड़ के इट इज इक्वल टू 127. ना हमें 127 बेस 2 को हेक्सा यानी कि बेस 16 में दिखाना है. सो अब ये तो बाइनरी में आ गया, इस बाइनरी को मैं हेक्सा में कन्वर्ट कर दूंगा. कैसे? लेफ्ट साइड से आप शुरू करें, लेफ्ट साइड से शुरू करें और 4 बिट्स आप ले लें का एक ग्रुप बना लें. इसी तरह से 4 बिट्स का एक ग्रुप बना लें और इसको एग्जाम में डिस्कस करते हैं. ये जो लेफ्ट साइड वाले 4 बिट्स हैं, आपको पता है ये इक्वल्स टू 7 है. ये आप देखें डेसिमल 7 ये नज़र आ रहा है हमें, और इसका 011 आ रहा है आंसर. सो आप ऐड भी कर सकते हैं 1 2 4 और 8. तो इसको ऐड करें तो ये 4 + 2 + 1 ये 7 बन गया, और ये आपके पास बन रहा है F. ये देखिए यहाँ नजर आ रहा है F. सो ये दिस इज बेस 16. ये सबसे आसान मेथड है. तो आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर आ जाए तो आप उसको 4 के ग्रुप्स बना के इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. लेट मी गिव सर ये इससे रिपीट कर दें, रिपीट कर समझ नहीं आया. जी एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ. 0 1 कोई भी नंबर होता है, 1010 1111 10001. सर आप ऊपर वाले को फिर से कर देंगे? मैं ऊपर वाले भी कर देता हूँ, एग्जांपल भी दिखा देता हूँ. अब ये मेरे पास एक बाइनरी नंबर एग्जामिनर ने मुझे दिया है और वो कहता है कि इसको हेक्सा में कन्वर्ट करो. तो मैं 4 के ग्रुप बना लूंगा. एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, एक ग्रुप ये बन गया, और एक ग्रुप
ये बन गया, ये 4 4 का ग्रुप होना चाहिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये 1010 किसके इक्वल है? आप यहाँ से अगर याद नहीं है आपको तो आप लिख सकते हैं 1 2 4 8, तो 8 + 2 10, और हेक्सा में 10 क्या होता है? A। तो ये आपके पास 1 1 1 ऑल सॉलिड 4 1s आ रही है यहाँ पर, ये हेक्सा में F होता है। ये चार्ट आप बार बार बनाएंगे और देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा। ये आपके पास क्या है? 1 2 4 8, ये 8 रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ लिख दिया 8, और ये क्या है? ये भी 8 है तो यहाँ लिख दिया 8। सो ये जो बाइनरी नंबर था इसको हमने बेस 16 में रिप्रेजेंट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे किया था हमने कि हमें 127 को डेसिमल में कन्वर्ट, डेसिमल नंबर को बेस 2 को कन्वर्ट करना था हेक्सा में। हमने क्या किया? पहले 127 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया, वो आया ये नंबर हमारे पास। तो अगर आप इन सबको ऐड करेंगे तो आपको पता है ये किसके इक्वल होगा? 127 के इक्वल होगा। 127 के हमने बिट्स के 4 4 ग्रुप्स बनाए, ये 4 ग्रुप बनाए सर एक बार रिपीट कर लेंगे। और ये 4 बनाए। रिपीट ही तो कर रहा हूँ यार। हमें क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन है कि 127 को बेस 2 में कन्वर्ट, बेस 2 को कन्वर्ट करना है, यानी कि डेसिमल नंबर को एग्जामिनर कह रहा है कन्वर्ट करो इनटू हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल को मैं कन्वर्ट करने के लिए, कोड करने के लिए क्या करूंगा? पहले 127 को मैं डेसिमल में लेकर आऊंगा। तो 8 बिट रजिस्टर में मैंने जब डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करनी है बाइनरी में, तो वो क्या है? सारी बिट्स ऑन हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम 64 को, 32 को, 16, 8, 4, 2, 1 को ऐड करें तो ये इक्वल होगा 127 के। तो ये जो बाइनरी नंबर है इसके मैंने 4 4 के ग्रुप्स बना लिए, राइट साइड से बनाने, ये याद रखना। तो राइट साइड से जब मैं बनाऊंगा तो मेरे पास ये 4 ग्रुप्स आ रहे हैं। ये जो सॉलिड वंस हैं, ये देखो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है ये सॉलिड वंस ऊपर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? F। यहाँ F आ गया। और ये जो 7 है, ये मेरे ऊपर चार्ट में 7 आ रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 7 हेक्सा का। तो ये मैंने 7 लिख दिया यहाँ पर, तो इसको मैंने लिख दिया 7F बेस 16। बेस 16 लिखें ज़रूर। तो ये आपका 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के अंदर। मिसाल के तौर पर और करते हैं, मेरे पास एक और F कौन सा वो कर रहे हैं? F होता है 1111 हेक्साडेसिमल में। बाइनरी में ये F बेस 16, बाइनरी में इट इज इक्वल टू दिस, और डेनरी में इट इज इक्वल टू 10। F बेस 16 इज इक्वल टू 111 बेस 2 इक्वल टू 15 बेस 10। सर एक मिनट नोट डाउन कर लेंगे ऊपर वाला। If we are given bits which are not exactly making 4 group of 4 bits, so what will happen then? Now let's look at an example. I have 0 0 1 1 0 1 1 and 1 1। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं इसको, बहुत छोटा लिख दिया मैंने। 0 1 1 1 0 1 1 0 1, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9, let me put it 1. So now I have 4 bits group this, 4 bits group this, and we are left with 2 bits. So we just assume there are 2 more zeros at the end over here. So in this way we can make a 4th group. Now if we convert this in hexa 0001, you can label it. You can label it. So this is equals to 1 in base 16, 1 2 4 8, 8 plus 4 12 plus 1 13, and 13 is equals to 10 A B C D. It is base, it is D equals to, this is equals to D. I can show you in the chart. This is a standard chart. Check out this. 1101 is equals to D, that is equals to 13. ये हमारे टेस्ट पे आ जाएगा कुछ दिनों में, आप फिक्र ना करें। सो और आप हमेशा याद रख सकते हैं कि 10 इज इक्वल्स टू A, 11 इज इक्वल्स टू B, 12 इज इक्वल्स टू C। इन ये डेनरी वैल्यूज बता रहा हूँ मैं, डेनरी इनटू हेक्सा। सो 13 इज इक्वल्स टू D, and 14 is equals to E, and 15 is equals to F. So
क्या बन गया जी? ये बन गया हमारे पास D, this is 1, this is D, and this is 1 0 1 0, that means 10. 1 2 4 8, 8 plus 2 is 10, so 10 is equals to, you see, 8. So यहाँ पर 8. So our binary number is converted into hexa. Bas, this is what it is. Now let me give you a question. You solve it and then मैं फिर आपको annotate करने